بیٹا یہ تو بہت رسک والی بات ہے نا، اور کوئی چارہ نہیں تھا نا بزرگوں. ویسے بھائی مولا داد، اگر یہ کوٹھڑی چودھری حشمت کی نظر میں آ گئی ہے تو شیر محمد صاحب کے یہاں رہنا واقعی بہت خطرناک ہے. کہتا تو بھی ٹھیک ہے شہزادے، پر خیری سے لایا 2-4-10 گھنٹے کی بات ہے. اللہ چاہے یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. نہیں، ایسا نہ ہو کہ عین منزل پہ پہنچ کے بازی ہاتھ سے نکل جائے. میرے خیال میں چودھری حشمت آج یہیں ٹھہرا ہوا ہے. دن کی روشنی میں شیر محمد صاحب کے یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. یار تو سوال پا کے نہ پریشان ہی کر دیتا نا. تو بتا تیری کیا رائے؟ میرے خیال میں شیر محمد صاحب کو اسی وقت کسی محفوظ جگہ لے جانا چاہیے. محفوظ مثلا کہاں جایا جا سکتا ہے؟ شہزادے یہ کیڈیا آیا ذہن میں. ان بزرگوں کو قوم کے سرمایہ کے کار لے چلتے ہیں. قوم کے سرمایہ؟ ہاں میں سمجھا. وہ ایک ہے شہزادے سنگر محمد سلیم، شہر میں روزگار لگنے کے لیے آیا. بڑی دید کرتا ہے میری. اس نے اسٹوڈیو کے باہر ایک کوٹھڑی کرائے پہ لی ہوئی ہے. پر بڑا چلا شہزادہ، سمجھتا ہے کہ اس کی آواز ایک دن اسٹوڈیو والوں کو کھچ کے لے آئے گی اس کے پاس. سوئے نہیں آپ؟ نیند نہیں آ رہی، تم سو جاؤ. بستر میں لیٹیں گے تو نیند بھی آ جائے گی. تم سو جاؤ نا. کیا بات ہے؟ سر میں درد ہے کیا؟ میرا سارا وجود پھوڑے کی طرح پک رہا ہے سکھرا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. آپ کے خاندان میں تو مسائل کو عورتوں کے ساتھ شیئر کرنا مردوں کی شیولری کے خلاف ہے. اس لیے میں تو پوچھ بھی نہیں سکتی کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے. طنز نہ کرو سکھرا. میں انور کی طرف سے پریشان ہوں سکھرا. وہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے. مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی آنکھ میں ایک شعلہ سا چمکتا ہے، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو، ٹھٹا اڑا رہا ہو. ایسی چمک صرف قاتلوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے سکھرا. قتل تو آپ کے خاندان کا مشغلہ ہے چودھری صاحب. میں تو حیران ہوں کہ آپ اس شوق سے کس طرح محروم رہے. آپ نے محسوس نہیں کیا میاں جی کی شخصیت انور میں کس طرح آسیب کی طرح داخل ہو رہی ہے؟ سکندر پور کا آئندہ جاگیردار انور ہوگا. نہیں سکھرا، ایسا نہیں ہوگا. میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے ٹھیک کہا چودھری صاحب، آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر آپ کی زندگی بھی تو... نہیں، میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا. اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ مجھ تک بڑھے میں اسے ختم کر دوں گا. آپ ایسا نہیں کر سکیں گے چودھری صاحب. انور کے اندر کا حیوان آپ سے کہیں زیادہ پھرتیلا اور بے رحم ہے. حکمدار. ہاں جی فرمائیے. بیٹا یہاں کوئی محت ہونے کا انتظام نہیں ہے؟ ہاں، یہ ساتھ ہی گلی کی نکر پہ کارپوریشن کا نلکا ہے. صابن اور تولیے وہ پڑے. 9 بج رہے ہیں، اٹھو گے نہیں؟ میں نے کون سا دفتر جانا ہے؟ روز کی طرح اسٹوڈیو کے چکر ہی لگانے ہیں نا، سو کسی وقت لگا لیں گے. اچھا. خوف کی وجہ ایسی نہیں، لیکن میں
मैं किसी से नहीं डरता। मैं ये मालूम करके रहूंगा कि चौधरी हशमत की नाना अबू से क्या दुश्मन, आखिर क्यों वो उनकी जान का दुश्मन बना। लेकिन फारूक, तुम तो खुद बता रहे थे कि वो लोग पक्के बदमाश और खूनी है, फिर तुम क्या कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? जितना करो, ये जागीरदार किस्म के लोग जो होते हैं ना, बड़े जालिम होते हैं, दिन दहाड़े बंदा गायब करा देते हैं। नहीं लगो सिमी, इसके बगैर कोई चारा नहीं। दिलावर साहब बता रहे थे कि चौधरी हशमत नाना अबू की जान का दुश्मन है, उसे जिस वक्त भी मौका मिला वो उन्हें कत्ल लगा दे। कमाल करते हो तुम भी, कोई मजाक है? कैसे मुमकिन है ये? नाना अबू ने बहुत जुल्म सहे सिमी, मैं उन्हें मजीद किसी इम्तिहान में पढ़ने नहीं दूंगा। उन्हें मेरी मदद की जरूरत है सिमी। लेकिन तुम कर क्या सकते हो? तुम तो अभी उनसे मिले भी नहीं। हाँ, लेकिन दिलावर साहब ने पक्का वादा किया कि वो आज शाम तक मुझे उनसे मिला देंगे, और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं ये मालूम कर लूं कि असल मसला क्या। देखो फारूक, मेरी मानो ना, तुम वही करो जो अम्मी कहती है, और ये जेम्स बॉन्ड बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम देखो तो सही, मैं शक्ल से जितना बेवकूफ लगता हूँ ना, उतना हूं नहीं। वह मैं तुम्हारा। हेलो शकीला। हेलो, कैसे हैं फरूक भाई? फाइन, थैंक यू। और सुनाओ, तुम कैसी? सुना है आजकल तुम्हारे गांव से कुछ अजीज आए हो। जी हाँ, न्याज भाई, भाभी और मियाँ जी हैं। कहाँ है सब लोग? वो न्याज भाई और भाभी तो शायद अपने कमरे में है, मियाँ जी अलबत्ता डाइनिंग रूम में है। कैसे है तुम्हारे ये मियाँ जी? सुना है बड़े रोबदार। जी हाँ, इस उम्र में भी इतने स्मार्ट एंड फिट हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। जुबैदा, स्टार्टिंग जुबैदा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब है बेटे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शकीला बेटी, देखो तुम ऐसा करो, फर्रुख को फौरन अपने कमरे में ले जाओ, है? और जब तक मैं ना कहूँ इसको बाहर ना आने देना, और कोशिश करना कि किसी की नजर इस पे ना पड़ने पाए। मगर चचे जान। ओहो, बाकी बातें मैं तुम्हें फिर बताऊंगा बेटे। जाओ इस वक्त, चलो जाओ, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। चलो प्लीज, चलो चलो चलो। रहने दे पुत्रा, रहने दे। मुझसे नहीं खाई जाती तुम्हारी ये डबल रोटी। मैंने अपने नाश्ता तैयार करा लिया था। पुत्र यूगू, तू का ताजा करा दे। जी अच्छा मियाँ जी। बाले, ओए बाले। और ये द्रावर और मौलाना नहीं अभी तक आए। अभी नहीं आए मियाँ जी। वो ये जैसा बाले वो ताजा कर अच्छी तरह। अच्छा। ओए, बंदे की पुत्रों की तरह ताजा करना होगा, ये तो सारे तत्ते को तेरी जीप पर रख दूंगा। गुबिया, तेरे शहर में तो कोले भी नहीं काम के मिलते हैं। 2-4 तरह किकर क्यों नहीं लगवा लेता बाग में? वेले के वेले कमी आ जाती है। बाले कौन है बात? हाँ तो पुत्र अनवर, मैं क्या बात कर रहा था भला? आप कह रहे थे मियाँ जी कि रिछ के हमेशा सिर में गोली मारनी चाहिए। हाँ, वो इसलिए पुत्र कि रिछ की खल जरा सख्त होती है। गोली तो पिस्तौल की बाद औकात काम ही नहीं ना करती उस पर। इसके लिए राइफल या फिर 38 बोर का रिवॉल्वर इस्तेमाल करना चाहिए। इसे शिकार का शौक भी क्या शौक है। अल्लाह बख्शे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद अली फरमाया करते थे, शिकारी कक्ष उकाब की और जिगरा शेर का होना चाहिए। ऐसा कोई आपको मिलने वाला है? क्या नाम है? नाम तो मैंने पूछा नहीं, कहता है कोई जरूरी काम है। वाह जवान सा है, सूटेड बूटेड। अच्छा ठीक है, बिठाओ, मैं आता हूँ। अब मैं शिकार की गल कर रहा था, और तू तो शहर में आके शिकार ही भूल गया गुब्बिया। नहीं मियाँ जी, ये बात नहीं है। दरअसल शहर ढोलन दा पुत चोर सी बई जिथे सन लगाई। ढोलन दा पुत चोर सी बई जिथे सन लगाई। एक बन गया बादशाह ते दूजा बने सिपाही। चू 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 बड़ बाजू चू चू कनक दिल चू चू चू। ढोलन दा पुत चोर सी
है भाई चू 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 एक बन गया बादशाह क्यों 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 ते दूजा बने सिपाही चू 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 कनक चू पुराना गला से यार नवा सुनाओ नवा सुन ले तू ये बस बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस मुंडला दे बाला वाले आ किथे तेरे नाल प्यार वाले आ तू मार जाए बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ चीची वाला छल्ला माही धोखे नाल ला लिया बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ बंद कर बकवास अपनी कोई फिल्मी गाना सुनाओ सुभान अल्लाह तो फिल्मी सुनना साढ़े को फिल्म लुकी है जिन्नियां फिल्मां असी देखियां तू तो देखियां ही नहीं होनियां चलो फिल्मी गाना सुना हमारे दिल से मत खेडो खड़ाउना पाट जाएगा क्योंकि बस बस में ढोलना हुआ बस करो बाहर निकलो हुन निकाह होंदे हो है मौला खुश रखे अल्लाह माही धोखे नाल ला लिया बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ बंद कर बकवास अपनी कोई फिल्मी गाना सुनाओ सुभान अल्लाह तो फिल्मी सुनना साढ़े को फिल्म लुकी है जिन्नियां फिल्मां असी देखियां तू तो देखियां ही नहीं होनियां चलो फिल्मी गाना सुना हमारे दिल से मत खेडो खड़ाउना पाट जाएगा क्योंकि बस बस में ढोलना हुआ बस करो बाहर निकलो हुन निकाह होंदे हो है मौला खुश रखे असी निकाह ते नाका लाया बाहर निकलो तनु सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिलेगा किधर लाड़े का चाचा ही ना दे देना सुभान अल्लाह अखा भी वेख जो करेले ने चीरा दिता हुंदा चाचा वेख ला ते चिखचो वेखण दे है चिखचो नहीं वेखण दे घबरा के वेखण दे हाय ओ तैनू लै मौला लवी मौला हुन निकल गया बाहर के कटा पिस्तौल है भाई तू कट ले पिस्तौल मार दे गोली पंड दे सीने च मारने ने ते 100 ते 10 नोट गिन के साडे मुंह ते मार ते वेख असी इंज दौड़ने जिवें मोटर वे नवियां गड्डियां दौड़दियां ने अल्लाह खैर भले हुण को लाड़े वालों भी खैर की खबर आवे लाड़ा वेख लै सुभान अल्लाह टोट पटोट ने खीर पकाई लाड़े नूं गौर नाल वेख लगदा इथोपिया दी बिल्ली है सुभान अल्लाह डबल रोटी तो तसदे मर गई अल्लाह खार होवे जी सखियो भले हुण साहबी साहब इंटरव्यू दे शुरू च मेरी वड्डी सारी तस्वीर ओदे थले मेरा पूरा नाम साबका उम्मीदवार कौमी असम्बली साबका उम्मीदवार सूबाई असम्बली साबका उम्मीदवार म्युनिसिपल कमेटी और एक्स कैंडिडेट मेंबर जिला काउंसिल व ज़कात चेयरमैन और आइंदा भी उम्मीदवार एहतसाब कमेटी और प्राइज कंट्रोल कमेटी और क्राइम कंट्रोल कमेटी जरूर छापना MBBS भी छापना जे सर की MBBS MBBS सर है की है जी मैट्रिक बार बार फेल सर ओए पीए तू अपनी चुंझ बंद रख ते अपनी रोजी ते लत ना मार यस सर है कौन है जी सर मैं वा जी गामा पीए चौधरी साहब दा पीए इन्हू दफा कराओ लंबे नू मैं थोड़े वास्ते ये मिठाई बनवाई है खास तौर पर जलेबियां आप बनवाई ने और फ्रूट मंगवाया है ये बाद च खाना है चौधरी साहब तुहाडी आमदन दा जरिया की है आमदन वास्ते मैं 15-20 वरिया तो मैं टकरा मारन दिया सियासत पर मेरा किधर हाथ नहीं पै रहा चौधरी साहब बड़े लम्बे चौड़े जिमीदार ने ते अक्सर अपने वोटरां सपोर्टरां दी खिदमत लई जमीन दे छोटे छोटे टुकड़े फरोख्त करते रहंदे ने मैं वा जी गामा पीए ते ए वे जी मेरा पीए मैं ते जी कंगाल हो गया फावा हो गया इन्हों खुआ खुआ के पर फिर भी मैं की करा किधर जावा समझ नहीं आती चौधरी साहब इलेक्शन इस जमानत जब्त हो जाती थोड़ी ये तुसी बहुत बुरा पॉइंट राइज करने की कोशिश की है लेकिन मैं जवाब दवांगा बड़े अफसोस की गल है मैं थोड़ी खातर की देसी कुकड़ खुआए थानू देसी परोठे खुआए मक्खन खुआए फल फ्रूट खुआए और तुसी मेरे मुंह ते एक किड्डी बुरी गल करती और थोड़े अखबार दियां 500 कापियां मैं कल्ले बिलाते खुद मैं खरीदियां ये कितना इंसाफ है वैसे जब जमानत जब्त होना एक आला किरदार दी
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 101 ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਾਦਾਦ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। आपको पता है, मालूम है, मेरा दुश्मन मुखालिफ मेरा सीगा, मैं उन्हें की कमा बुरा नहीं कमाऊंगा क्योंकि मुखालिफ के साथ में लड़ूंगा। उन्हें की टट्टी हरकत की थी, मेरे वोटरां ते काले दा वार करवाया, मेरे वोटरां ते काले दा वार करवाया। नंबर 2, 200 वोट, पूरे 200 वोट कैंसिल करवाते, संदूकियों की स्याही पवाती। एक तरीका उस दिन काले शाह बदल आए, काले शाह कटावा उठिया, मीह पिया टका के जोर के, रज के मीह पिया, ना पानी। और उस तो बड़ा जुल्म की होया मेरे नाल, जुल्म ये होया कि साइयां ने हड़ताल करती, गोश्त की हड़ताल करती। असी मिलजुल के पतली की दाल बनाई पतली जी, वो जो किसी ने जबो लोटा पाता। वाह निशानो, वाह निशानो जी, निया सिर घुटना एडा संगा किथा सिखिया? हाय नी चाची, मां बिश्तर ने सहाया सी। अल्लाह बख्शे तेरी मां नू, बड़ी नेक औरत सी। बस कर मेरा पुत्र। चाची तू मैनू अज एक गल दस, जे तुम चंगी तरह पता सी कि चाचे दियां 2 बीवियां पहले भी सन जिहड़ियां मर गईयां ने, नाले एक धी जवान घर बैठी है, नाले तेरे तो दुगनी उम्र दा, ओदे बावजूद तू चाचे नाल विआह क्यों कीता सी? हाँ निशानो, बस तैनूं की दसां, अल्लाह किसी नू गरीब प्यो भी ना दे, ते जे गरीब प्यो होवे ते ओदे घर धीआं ना हो। हाय चाची, गल ते बिल्कुल ठीक कीती हो, पर उम्र तो फिर भी प्यो धी वाली है ना। चल खैर है, पर चाची छोटी उम्र दी बीवियां अपने खामद नूं तिगनी दा नाच नचांदियां ने, जिवें कि तू चाचे नूं नचानी है ना। नाच के अजे गल्लां करन रही है, तिगनी दे नाच नचान नहीं आ मैनू की जरूरत है तिगनी दे नाच नचान? तेरा हाले जिले दे नाल विआह भी पता नहीं कदों होना कि कदों नहीं होना, ते तू हुणे ही हाले तिगनी दे जेड़े नाच नचान दई हो। चाची हुण मैं कि तिगनी दा नाच नचाना, हुण ते चौधरी सलामत अपने इशारां ते नचाई जा रहे हैं। बेजा निशानो तू भी चलनी है, चौधरी सलामत जेड़े ने वो ते बड़े नेक सीरत ते साडे माई बाप है गए। माई बाप चाची तन की पता होवे कि वो जिले नु बाहर क्यों भिजवाना चाहता है? नी पागले, तेरा काम है इस घर दे बाहर जेड़ा भी कोई सही काम दी गल करेगा ना ओदे विचों कीड़े कढने शुरू कर देनी। चाची काश ते चौधरी सलामत दे दिमाग च छुपे खबासत दे कीड़े ओदी अखां च वेख सकदी। ए मां, ए अंदर गुरड़ा लकड़े जे मेरी फिल्मां दी तस्वीरां दा रसाला पिया सी, ओ किने कढिया? ले ओ किने कढिया? ओ ते पाश पाक ने सदियां दा पढ़ पुड़ के फाड़ के सुट भी दिता। नी ओ कौन अंदर रसाला पाड़न वाला? हाय नी चाची अपनी धी नू ते वेख, कुड़ियां ते अपने होने वाले खामद दा नाम सुन के शर्मांदियां ने, ते तेरी थी नी मेरे ख्वाबां दी तबीर इस पिंड च नहीं बल्कि बिग सिटी ते लिबर्टी मॉल च। हाय नी चाची अपनी धी नू डक फाड़ के रख, हथों निकलदी जा रही हूं। मैनू की लाड़ नु फाड़ के रखन दी? तेन पता मैं ते होई मतरई मां, ते मतरईयां मावां नू ले जाए कोई गल करदे न ते देने दे लैणे पै जांदे ने। हुण पिछलियां सर्दियां दी गल सुन ले, मैं एवं छोटी मोटी गल तो किते कुछ कह बैठी, तेरे चाचा ने करारी फाड़ के मैनू एडी जोर दी मारी, हाले तक मैनू पीड़ा उठदियां ने। मैं तैनू की दसां चाची, मां ते मां ही हुंदी, भावें मतरई होवे ते भावें सखी हो, कुछ समझे तो फेर। मौला खुश रखे, ले भी एक जंग फेर लड़के विखा। इस तरह करो, कोई मासी का कुकर लैके आओ फिर। मैं मर जानिया, सारा दिन मेरा फिरते रहना, टूट मेरिया, तेरा काम है तू के दे मार नाम बरासा, तेरा काम न रवे नाम बरासा। बस कर मासी, बे आके अटैक कर दे तो साडे ते आख साडी नहीं कोई इज्जत नहीं। बे मेरा कुकर जख्मी कर देता, मर जाने तनु किसे दी आई मैं कहनी है? मेनू आई आवे, तू जिंदी रहे। अबे कितना जख्मी होया? ए तक 25 दे पैसे तेरा प्यो देगा?
मेरा कुकुर जख्मी हो गया है तो जो मल्लम पलटी ते खर्चा आंदा है ते ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन है साडे को पेमेंट लै वे तेरे वर्गे नखत्तू जेड़े छोड़ियां दे टुकड़ियां ते पालदे ने ना जिन्नी को उन्हां दी इज्जत हुंदी है महल्ला चाहता है वे तू मैनूं पैसे कित्थों देने मर जाणिया तू ते छुरी जो गया अपने काबल नहीं अपने किसे काबल नहीं बस कर खैर हो गए ना मरा जा जाना ना बेटा चली जा तुझसे बहना ना हो तू आई जरा नकी के मेरे साथ गली तेरे वाले सारे कमियां तू मैनूं कभी ना लौली जेड़ी मासी है ना ये साडा जेड़ा मासड़ सी ना वो ये दुखों मोहरा खा के मर गया ये मासी जनानी ना आउंदी आओ आई वो मासी जेड़ी होंदी वो ते जनानी होंदी जेड़ा मासड़ होंदा वो बंदा होंदा ओ यार जिले सच्चियां गल्लां दा बुरा नहीं मनाईदा देखे ना ਜਦੋਂ तक तू कोई काम धंधा मेहनत मजदूरी नहीं करेगा लोग इस तरह ही गल्लां करते रहना बादशाह समझदा नहीं और जिवें पिया मैं 11 साल दुबई की टैक्सी वाई अच्छा ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਫ ਸ਼ਫਾਫ ਸੜਕਾਂ ਓਹੋ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਲਓ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾ यार इत्थे चला ला टैक्सी इत्थे भी शहर च टैक्सी चलाने वाले बड़े पैसे कमाते हैं अच्छा जी तेरा ख्याल है कि मैं इत्थे टैक्सी चलावां जिथे ब्लड प्रेशर दे मारे लोग टुटियां सड़कां कूड़े दे ढेर लगे और रद्द कराए काम मैं इत्थे नहीं करना और पर कुछ चाचे मोला बख्श ही ख्याल कर जिहदी धी घर बैठी बुढ़ी हो रही ये वो बुढ़ी हो रही है ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ यार जिले बड़ी देर तो उस वेले का इंतजार पता नहीं वो वेला कदों आवेगा ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸ਼ਾਨੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮਤਾਂ ਚਸਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਕੜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ और तू फिक्र ही ना कर कुक्कड़ दा बनू ओए तेनू किन्नी बारी क्या कि केस पेश करने तो पहले मुकदमा पेश करया कर सारे मास्टर अल्लाह दिता जी ट्रांसफर मनसूख कराने वास्ते दरखास्त है सर ते ट्रांसफर किने कैसे करनी है जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब ने जी ते मेरे वालों डीओ लेटर लिखो जी सर लिखो माय डियर ओ हाँ थले लिखो ओ पिछले साल जी मैं दरखास्त लिखाई सी ना मास्टर इल्मदीन दी बेहतर सर वो जो सब्जेक्ट सी ना वो लिख दो ठीक सर ओदे थले लिखो यूर सिंसियरली चौधरी सलामत ओए सिंसियरली दे हिजे आंदे ने जी सर ओए बच्चा जे स्पेलिंग नहीं आउंदे तो जिवें पिया चौधरी होरां कोलों पुछ लै ओ भाई चीले तेन मुबारक हो भाई खार मुबारक जी बच्चियां दे भाग जी हुण जोड़ियां घोड़ियां ते पैर दुबई वाले एजेंट दा टेलीफोन आया अच्छा जी पूरे 15 वीजे आए ने अच्छा जी लो जी चौधरी जी खैर होवे जीवो पर मैनू छेती नाल दस दिओ कि मेरे पैर दुबई दे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते हुण कदों पाने ने तू हुणे पैसे लेके आ ते सूरज ढलन तो पहले दुबई एयरपोर्ट ते नचदा फिरी अच्छा जी मैं उत्थे नचदा फिरां जीवो पे उत्थे ओही ना होवे कि शुरते जेड़े ने सने हाथ कड़ियां दे मेरा इस्तकबाल उत्थे कर लै ये तू की कह जरा फिर आखी जरा माई बाप मैं माफी चाहना वा मैनू पिछले साल वाला तजुर्बा जेड़ा जी ज़हन च घुम गया चक्कर आ गया तेनू नानी याद आएगी दरअसल जेड़ा सी ना वो पहला एजेंट वो जाली वीजे दा कारोबार करदा सी
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 1 ਲੱਖ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? चौधरी साहब जिला और 1 लाख रुपया नामुमकिन सर। ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਓਏ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਿਆਲ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਚੌਰੀ ਜੀ